नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक अमेजिंग नए क्लास में, एक और प्रीमियर क्लास। और आज का सेटअप कुछ अलग लग रहा है सर। आपको रीजन पता है, आई एम ट्रैवलिंग एंड एज आई एम ट्रैवलिंग आई डोंट हैव द बैकअप, आई डोंट हैव द backdrop or the setup that is required for the video, but still I have tried my level best to give you the best quality that I can give. So नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी. आई एम a chartered accountant by profession and a professor by passion. I have wonderful grip on law and that is the reason I've been teaching law from so many years now. And जैसे कि आपको यहाँ बाजू में स्क्रीन पे दिख रहा है that of course, I am a chartered accountant and I have done my BCom from Brihan Maharashtra College of Commerce. It's one of the most renowned and recognized college here in Pune. And I've been teaching for many years now and I have uploaded almost 350 plus videos online for students who are going to appear in this December 20 exams, or maybe some opt-out students who are going to appear in January 21. And in fact, even for those students who are planning on appearing in May 21, I think some of the videos might be a lot useful, because we have because it's not that old, but so of course you can take a look at them as well. But the best part is I'm conducting this class specifically for May 21 students. So of course also November 21 students can also benefit from the same classes. It's advisable to start early and finish it off first. So if you are one of those students who are actually going to appear on in November or maybe May 21, I think this November 21 or May 21, I think this batch is going to be a lot useful for you guys. So with this, I'll start my today's lecture. Also, just let me tell you something about a dream called Unacademy. Now, as you can see, this Unacademy, we have a free app on for iOS as well as Android, which you can download anyways, no problem at all. And the moment you download the app, just type in Unacademy Learning. You don't even have to type the learning part entirely. You just type Unacademy and you'll good to go. You'll find the learners app as such. Now you all you have to do is hit on install button. Okay, और जैसे ही आप ये कर देंगे क्या होगा, they'll ask you to select a goal. Say for example, अगर आपका आप CA पढ़ा रहे हैं तो CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट आप पढ़ा सकते हैं. अगर आप पढ़ रहे हैं तो CA फाइनल, CA, CS, कैट, मैट. इफ यू एक्चुअली गोना टेक अ लुक, आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं. वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर almost so many things now that Unacademy is a one-stop solution for studies as of now. Now also you get an option to go for plus. So what is plus exactly, sir? So in plus, what happens is you get 30 plus hours of exclusive live sessions every day. That is only there for plus students, and normal students, those who don't have plus subscription, they don't get access to this lectures. I mean, they are not able to watch these lectures. So अगर आपके favorite faculties है, जैसे अगर मैं आपको law पढ़ाता हूँ, आपको बहुत पसंद है, तो there will be some plus lectures जो आप नहीं देख पाएंगे. Reason very simple, that you don't have plus subscription. So that is the reason I recommend. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही, जितने भी बड़े बड़े फैकल्टीज अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, आप एक सब्सक्रिप्शन से सारे टीचर्स के प्लस कोर्सेज आप देख सकते हैं. जितने भी एजुकेटर्स हमारे इस पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी है, सीए इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन, इस कैटेगरी में जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर पेइंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, बट देन ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर के लिए आपको अलग से पे करना है. ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में. 14 प्लस टॉप एजुकेटर्स आएंगे पढ़ाने, और साथ पे आपको तो पता ही है मैं भी रहूंगा, मैं भी आपको पढ़ाने आया करूंगा. एंड न्यू कोर्सेज आर आल्सो गेटिंग पब्लिश एवरी नाउ एंड देन, मे बी यू कैन टेक अ लुक एट देम एज वेल. नाउ सपोज आपने गेट सब्सक्रिप्शन कर लिया, तो सर कितने पैसे हमको देने पड़ेंगे? तो बिफोर वी गो देयर, जस्ट आई हैव टू टेल यू समथिंग. बेटा, आप लोगों के फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में 8, यानी इन टोटल आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. नाउ लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर. बाहर मार्केट में गिरी से गिरी हालत में आप लोगों को 1 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं इन 12 सब्जेक्ट्स के लिए. यानी 12 सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप 1 लाख रुपए देंगे गिरी से गिरी हालत में. उसमें क्या होगा, 12 फैकल्टीज के आइदर आप फेस टू फेस क्लासेस ले लेंगे, या तो फिर रिकॉर्डेड या पेन ड्राइव क्लासेस ले लेंगे. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि कितनी बार आप इसको देख सकते हो? सर फेस टू फेस बैच तो आप एक ही बार बैठोगे. हाँ, रिकॉर्डेड बैचेस, प्री रिकॉर्डेड बैचेस और पेन ड्राइव जो होता है, इसमें टाइम्स लिया रहता है, जैसे 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, चलो उससे ज्यादा नहीं है, 2.5 टाइम्स, उससे ऊपर नहीं होगा. चलो मैं तो बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल को भी मैं पॉसिबल पकड़ लेता हूँ, तीन बार. उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस सर, फिर क्वेरी सॉल्विंग का प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है.
और लाइव नहीं है ना सर, अल्टीमेटली रिकॉर्डेड है, और जो फेस टू फेस है वहां पर आप एक ही बात देख सकते हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इफ यू डोंट लाइक द टीचर यू डोंट हैव एन ऑप्शन, सिंपल एज दैट। आपने पे कर दिया है, आप अटेंड करो मत करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 लाख, डोंट इवन पे 80,000, 70, 60, 40, 20 भी मत पे करो, पे ओनली 18,900, जिसमें आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 24 मंथ्स सर? 24 मंथ्स तक, द मोमेंट यू पे 18,900, तब से लेके 24 मंथ्स जब तक कंप्लीट नहीं होते, तब तक आपको पूरा प्लस कंटेंट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं उन सब का आपको मिल जाएगा। नाउ अब सर ये 18,900 में कैसे ले, बिकॉज जब हम देखते हैं तो 21,000 लिखा आता है। कोई बात नहीं ना, देयर इज एन ऑप्शन टू अप्लाई रेफरल कोड। सर द मोमेंट यू अप्लाई रेफरल कोड सीए आदर्श विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंटली। तो अगर आप 21,000 में 10% देखेंगे, 2100 माइनस हो जाएंगे, यू एंड अप पेइंग ओनली 18,900। सर क्या ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 24 मंथ्स के ऑप्शन पे अवेलेबल? नो, दिस रेफर कोड इज एप्लीकेबल ऑन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ऑल द ऑप्शंस। ओके, अब एक और इसमें एक ऑप्शन होता है दैट यू कैन, अब ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा अभी कोविड है, बहुत सारी सिचुएशंस है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे 18,900 अप फ्रंट। तो व्हाट रैदर यू कैन डू इज, आप एक काम करिए ना, फिर आप क्या कीजिए, इसको नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करा लो। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब सर, बेटा अब आप तो अकाउंट्स, मतलब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए सर। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, विच इज अ वेरी बिग कॉस्ट। यानी समझ लो कि आपको ऐसा लोन देने रेडी है पढ़ाई के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है। इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी अन अकेडमी बियर करेगा आप लोगों के लिए। तो ये कई बैंकों की क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे ऑप्शन अवेलेबल है। गो चेक आउट दोज ऑप्शंस एंड मे बी ऐसा यूल एंड अप पेइंग लेस देन जो आप 6th और 7th की क्लासेस में पे करते थे। और यहाँ पर ऑप्शन ये है कि अगर आपको आदर्श जोशी का ये पर्टिकुलर लेक्चर या पर्टिकुलर कोई टॉपिक पसंद नहीं आया तो आप वो दूसरे से भी पढ़ सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है आप अपने आदर्श जोशी को छोड़ के नहीं जाना है, बट क्या है कि सर आदर्श जोशी सर अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे आपसे नहीं समझ में आया तो मैं किसी और लॉ के फैकल्टी से पढ़ लूंगा जो भी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। चलो मैं किसी और से कुछ सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, मुझे उनका वो समझ में नहीं आया तो मैं आपका पढ़ लूंगा। रीजन वेरी सिंपल, आई हैव प्लस सब्सक्रिप्शन, आई कैन गो फॉर ऑल द फैकल्टीज दैट आर देयर। So that is a very good actually option. Okay, so let us start with our okay, just let us start with इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा चीज देख लिया। अभी यूनिट 3 चल रहा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। और इसके अंदर क्या चल रहा है सर? इसके अंदर हमारा ये चल रहा है कि हम लोगों ने देख लिया कि सर पहले देखा कंसेंट, फिर देखा फ्री कंसेंट क्या होता है, फिर उसमें देखा कि कैसे नहीं होता। जैसे हमने देखा कि सर कोएर्शन से फ्री कंसेंट नहीं होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंसर नहीं होता है, फ्रॉड से नहीं होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है। एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक, मतलब आज हम देखेंगे a little bit about mistakes. Now mistakes are a very interesting things because गलतियां सर सबसे होती है। आज हम उसी गलती के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा सर कोएर्शन, यानी सेक्शन मैंने आपको बताया सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 20, 21, 22। एक्चुअली हमने 19 और 19A भी देख लिया, लेकिन 19 वो अवॉइडेबल करने के लिए और 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कैसा होगा उसके ऊपर है। तो 15, 16, 17, 18 ये हम देख लिया, इससे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल होता है, 19 में लिखा है। 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए मिस्टेक आता है सेक्शन 20, 21, 22। अब इस मिस्टेक मतलब क्या सर? मिस्टेक आपको यहाँ दिख रहा होगा सर, बायलैटरल हो सकती है, यूनिलैटरल हो सकती है। अब आपको ये बायलैटरल यूनिलैटरल ये वर्ड समझ में आता है, रीजन क्योंकि सर आपने हमको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें आपने ये बायलैटरल यूनिलैटरल वर्ड बताया, इसलिए हमको ये समझ में आता है कि सर बायलैटरल मिस्टेक यानी शायद बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मिस्टेकन, जैसे एड्रेस्टिया वाला केस। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी सही सोच के सही ट्रांजैक्शन करने आ रहा है, लेकिन अगला पार्टी सेकंड पार्टी इज अंडर अ रॉन्ग इंप्रेशन, और उसको बोलते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू फैक्ट, और वो सारी चीजों के लिए हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों आई अंडरस्टैंड दैट दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बट ट्रस्ट मी आप यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर और मे बी मोर देन दैट। मैं 19th ऑनवर्ड मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा टू कम रेगुलरली, एटलीस्ट ट्वाइस आई विल कम रेगुलरली, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सो प्लीज मेरे साथ दे दीजिए इस थोड़े से मौके पर। अगर ये इस किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट होता है, ऐसा मत सोचना कि ये पढ़ा दिया सर ने तो अब दोबारा नहीं होगा ना। वी विल लाइव क्लास में हम लोग इसका एक डाउट क्लियरिंग सेशन और एक री रिविजन या एक थोड़ा बेटर रिविजन सेशन लाइव ले लेंगे, सो दैट इफ एट ऑल यू हैव, सॉरी होता है कभी कभी
इफ एट ऑल आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मे बी दैट कैन गेट सॉल्व इन दैट सेशन। तो हम, आप ऐसा मत सोचो कि मतलब सर प्रीमियर कर दिया है, खत्म हो गया, सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं बेटा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब तक अमेजिंग मार्क्स लाके पास नहीं होते तब तक खत्म नहीं होगा। आखिरी दिन तक मैं आपके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। चलिए, जब तक मुझे खड़ा रहने के लिए इजाजत दी जाएगी, मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। अब अगर भगवान ना चाहे कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तब तो कुछ नहीं कर सकते, बट इन मैं मेरे एंड से हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा ना। अगर आप मिस्टेक देखते हैं सर, मिस्टेक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन आइदर बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ और इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वेरी सिंपल। नाउ सर, व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक ऑफ लॉ? सर, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि ओ सॉरी, मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था। यानी से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बंदूक आपकी अभी जेब में है, मैंने आपको पकड़ लिया और मैं आपको बोल रहा हूँ, ए भाई इधर आ, ये क्या है? बंदूक। सर, बंदूक है क्या इसमें? अच्छा, गोली है इसमें? हाँ हाँ। और चलती है? हाँ। अरे सर, मर्डर करके दिखाओ आपको, आप खड़े रहिए, मैं आपका मर्डर करके दिखाता। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, आपके पास लाइसेंस है बंदूक का? मतलब लाइसेंस तो गाड़ी का होता है भाई, पागल हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, एक बंदूक का क्या लाइसेंस होता है? तो आगे वाला इंसान बोलता है एक मिनट ठहरो, वो पुलिस स्टेशन फोन करता है, पुलिस आती है, आपको जेल में बंद कर लेते हैं। रीजन वेरी सिंपल, आपको ये नहीं पता कि भारत सरकार ने आर्म्स एंड एम्युनिशन बैन रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली पर्संस विद लाइसेंस कैन ओन एंड कंट्रोल इट, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है इसका। नाउ द पुलिस जब आपको पकड़ेगी, क्या आप ऐसा बोल सकते हो, अरे सर गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया? स्टाइल है ना बोलने का कि सर सॉरी, आई डिडंट नो दैट इंडिया में अलाउ नहीं है। सर, आपको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा? पहले सर, 2 डंडे इसके लिए एक्स्ट्रा पड़ेंगे आपको। समझ रहे हो? आपको 2 डंडे एक्स्ट्रा इसलिए पड़ जाएंगे कि आपने एक बहुत बड़ा झोल दिया है कि मुझे नहीं पता था इंडिया में अलाउड नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12-13 साल के, 10-12 साल के बच्चे को अगर अपने यहाँ नौकरी पे रखता हूँ, तो मैं उनको बोला, अरे मुझे नहीं पता ये चाइल्ड लेबर है, आई डोंट नो चाइल्ड लेबर, नहीं पता मुझे, ऐसा पॉसिबल है? इफ आई एम ए हिंदू, आई एम ऑलरेडी मैरिड, और अगर मैं किसी और से शादी करने की वापस से कोशिश कर रहा हूँ, कैन आई से दैट ओके आई डोंट नो यार, मतलब मुझे नहीं पता था हिंदू लॉ, हिंदूज को एक ही बार शादी करना अलाउड है, या वो डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते? मुझे लगा कि मल्टीपल शादी अलाउड है, पहले राजा महाराजा करते थे। सो ऑल दिस statements will not be held. Reason is very simple, that you cannot argue over mistake of Indian law. You cannot make an excuse that I didn't know the law of the land on in which I reside. अगर मैं इंडिया में रहता तो आई एम सपोज टू नो ईच एंड एवरी लॉ इन डिटेल। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आप इंडिया में रहते हो, आपको लॉ पता रहना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया का। लेकिन व्हाट इफ सर मैं फॉरेन कंट्री का कोई लॉ ब्रेक करता हूं इंडिया में, यहां पर मैं हूं, मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जिससे फॉरेन में किसी कंट्री का लॉ ब्रेक हो रहा है, सर देन दैट इज अ वैलिड आंसर ना, कि सर मुझे नहीं पता था कि उस कंट्री में क्या रूल है। सी, हजारों, मतलब इतने सारे कंट्रीज है, मुझे हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक जगह का लॉ नहीं पता होगा ना। ऑफ कोर्स मैं कोई भगवान नहीं हूं। सो यू कैन प्लीड इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ। देखो, ध्यान देखो मैं क्या बोल रहा हूं, you can plead ignorance of the foreign law but you cannot plead ignorance of Indian law. Reason is very simple, आप इंडिया में रह रहे, you are supposed to know the land law of the land. अब ये हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होता है कभी कभी, अरे मुझे लगा कि आप एड्रेस या शिप बेचने वाले हो, उसने बोला अरे नहीं, मैं हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। या अपोजिट, मुझे लगा आप हाउस प्रॉपर्टी बेचने वाले हो, और मुझे वो बोलता है नहीं नहीं, मैं शिप बेचने वाला हूँ ना। इस केस में क्या हुआ है, जो सब्जेक्ट मैटर है या कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को लेकर एक मिस्टेक है, दोनों पार्टीज कुछ अलग अलग सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब यहां पर क्या हो गया कि दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था। अच्छा, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ द गुड्स, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड्स, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, किसी भी चीज को लेकर, बट देयर कैन बी अ मिस्टेक। अब देखो, ये तो हो गया भाई मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। कभी कभी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी बाहर आ जाती है। मैंने आपको बीफ बैन के वक्त बोला था कि कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ, मतलब मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इट मे हैपन दैट मुझे नहीं पता, बट देन सम हाउ उस चीज का लेना देना कॉन्ट्राबैंडेड है, या उसको मना किया हुआ है, बैन किया हुआ है। सो इट कैन ऑल्सो हैपन दैट समटाइम्स लीगली और मे बी फिजिकली इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नासा को बोलूं कि मुझे आपका एक रॉकेट खरीदना है, तो मैं जाकर उसको उठाकर जेब में डाल के नहीं ला सकता। वाई? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिलीवर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत ज्यादा मुश्किल, आपको पूरा डिसमेंटल करके वापस बनाना पड़ेगा, लिटरली यू कांट मूव इट अराउंड। सो समटाइम फिजिकली ऑल्सो इट इज वेरी, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहां पर भी बायलैटरल मिस्टेक्स हो जाती है। कभी कभी होते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक।
यानी यानी सर एक पार्टी को सही पता था, दूसरी पार्टी अंधेरे में जी रही थी. It can happen because of identity of person or character of a written document. So what we'll do is we'll take a look at all these factors one by one, and in next couple of lectures we will understand this mistake, and we'll wrap up the entire free consent part in detail. And also live आने के बाद मैं दोबारा लूंगा. Anyways, I'm trying to be live as much as possible. अब मैं जहां पर हूँ वहां पर बिल्कुल अभी मतलब जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं वहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट का थोड़ा बहुत रिमोट एरिया है, इंटरनेट का बहुत इश्यू है. सो आई डाउट कि मैं अभी ऑनलाइन होगा या देख रहा होगा, बट इफ आई एम देयर दैट मीन्स कि बहुत जुगाड़ करके मैंने कुछ किया है. इनफैक्ट एवरी डे आई एम गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट, इट इज गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट, बट लेट्स सी. अब आप बोल रहे हो सर फिर ये लेक्चर्स आप कैसे देते हो? अरे भाई साहब मत पूछो, उसके लिए तो क्या क्या जुगाड़ करना होता है. सो इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स फॉर मी टू डिलीवर द लेक्चर्स. कोई बात नहीं, वो करना होगा, मेरा काम है. बिकॉज आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपका करियर आपकी पढ़ाई मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा आज महत्व रखती है. और इतना मैं आपके लिए डाल रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है ना वीडियो. लाइक कर दो यार प्यार से प्लीज. लव यू अलॉट एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट. मैं देख रहा हूँ कई बच्चे मुझे कंटिन्यूअस मैसेज करे कि सर हम आपको बहुत मिस करते हैं यार, सर मजा ही नहीं आता, मतलब आग ही नहीं लग रही है. मुझे पता है आग क्यों नहीं लग रही है, बिकॉज ऐसा है कि मैं चिंगारी अभी जला रहा हूँ और तुम तक वो पहुंच बहुत दिनों बाद रही है. तो उसका कोई बात नहीं. रीजन इज वेरी सिंपल दैट वी आर नॉट लाइव. एंड मैं आपको इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि लाइव क्लासेस का क्या महत्व है, आपको यही समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट मैं चैट में भी लाइव हो सकता हूँ, बट वो लाइव वाला जो मजा होता है ना वो नहीं है. बट डरो मत, आपको सिर्फ 19th तक ये एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद आई विल बी अगेन लाइव. और उसके बाद तो हम लोग मस्ती वस्ती करते हुए पढ़ाई कर ही लेंगे और इसको वापस हम देख लेंगे. Now mistakes. Sir, what do you mean by mistake? So mistake is defined as an innocent or erroneous belief which leads to the party to misunderstand the other. Say for example, mistake may be either bilateral or unilateral. A bilateral mistakes क्या होता है when both the parties to the contract are mistaken. और unilateral contract होता है when only one party to the contract is under a mistake. So what are the effect of mistake on validity of contract? Now this is a very important question. We'll have to understand this, that this mistake is a bit different than all the other जो हमने अभी तक देखा ना, coercion, anti-influence, fraud, misrepresentation. इन रीजन से बहुत ज्यादा अलग है mistake. And the main difference that is there is, in mistake the contract does not become voidable. Then what does it become? Then we will take a look at that. So mistake is an unintentional act, omission or error arising from unconsciousness, ignorance or forgetfulness, impositions or misplaced confidence. And it can be of two types: mistake as to law, mistake as to fact. Now let us go to mistake as to law. First मैं बता दूं, it is very essential for the creation of a contract that both the parties should agree at the same thing in the same sense. अब जब भी at the same thing in the same sense है, you know what they are talking about. They are talking about consensus ad idem. Now it's very simple. Consensus ad idem मतलब क्या होता है बेटा? मीटिंग ऑफ माइंड्स. तो सर मीटिंग ऑफ माइंड से नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, कंसेंट ही नहीं है. या कंसेंट है भी अगर तो फ्री नहीं है. क्यों? बिकॉज आप दोनों सेम चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो. वो कुछ और बेचना चाहता है, आप कुछ और खरीदना चाहते हो. वो किसी और रेट में बेचना चाहता है, आप किसी और रेट में खरीदना चाहते हो. वो किसी और मोड से पेमेंट चाहता है, आप कोई और मोड से कर रहे हो. सो there is no meeting of minds. But to make an every contract valid, there has to be a meeting of mind. Now because free consent लिखा है वहां. Now thus if two persons enter into a contract, each of them thinking about a different subject matter, no contract will arise. As a result, a mistake may lead a contract towards voidness. अब यहाँ पर मैं I would like to bring your attention to the fact that यहाँ पर बोला गया if both the parties to the contract. ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Thus if the two persons enter into a contract, each of them thinking about different subject matter, यानी कि यहाँ पे both the parties are thinking about two different things. So let me give you an example of Adrestia for those of you जो पहले नहीं देखे हैं मेरी क्लासेस. Adrestia नाम की मिस्टर ए के पास दो चीजें थी, जिसको याद नहीं है अभी देख लो एक बार. एक उसके पास थी शिप जिसका नाम था Adrestia, और एक उसके पास थी हाउस प्रॉपर्टी.
Now what happened, due to COVID, Mr. A की माली हालत खस्ता हो गई and Mr. A proposed to Mr. B that I want to sell Adrestia. Now either please note that Mr. A didn't say कि Adrestia the ship or Adrestia the house property. He just said I want to sell Adrestia. Now Mr. B is a very good friend of A, so उसको क्या लगा कि Mr. A wants to sell the house property whereas Mr. B जो A जो है he wanted to sell the ship. So Mr. B casually asked, अच्छा बताओ कितने में बेचोगे? तो Mr. A शिप का रेट बता रहा है 4 करोड़ कि भाई एड्रेस्टिया में कम से कम 4 करोड़ में बेचूंगा. मिस्टर बी गॉट वेरी एक्साइटेड, जंपी है ना, बोलते ना ही जंप्ड इनटू अ बैंड वैगन. इट्स एन इडियम, इट्स अ फ्रेज, आपको ये याद रखना है आपके एक सिलेबस में. मिस्टर बी बोलते हैं हाँ नहीं नहीं ठीक है डन, मेरे किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, आई एम पेइंग राइट अवे 4 करोड़ कैश डील, खलास मेरा हो गया एड्रेस दिया. नाउ मिस्टर बिकॉज मिस्टर बी वॉज थिंकिंग यार देखो हाउस प्रॉपर्टी मिनिमम 10 करोड़ का है, 10 करोड़ की चीज 4 करोड़ में मिल रहा है, अभी दोस्त से अपने को टाइटल क्लियर है, सब क्लियर है, देन व्हाई शुड आई नॉट बाय. तो यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए भी खुश. अरे यार सोच रहे शिप, मुझे लगा नहीं था कि 2-2.5 करोड़ के ऊपर जाएगी, 4 करोड़ तो अच्छा मिल रहा है. सो मिस्टर ए वॉज ऑल्सो हैप्पी, मिस्टर ए भी खुश, मिस्टर बी भी खुश. ये अपना शिप का डॉक्यूमेंट लेके आया, ये अपने घर की प्रॉपर्टी की खुशी में जी रहा है, 4 करोड़ लेके आ गया. अब जैसे ये लोग मिले, जैसे पेपर साइन होने वाला था, मिस्टर बी ने पढ़ा शिप. मिस्टर बी बोलता है यार ये शिप विप क्यों लिखा है घर में. मिस्टर ए बोलता है घर में यानी शिप है तो शिप ही लिखेंगे ना, शिप है मतलब समझा नहीं. तब जाके दोनों को रियलाइज, ओ एक मिनट आप कौन सा एड्रेस क्या बेचना चाहते हो. तो ए बोलता है मैं शिप बेचना चाहता हूँ. बी बोलता है मुझे लगा आपका हाउस प्रॉपर्टी जिसका नाम एड्रेस है आप वो बेचने वाले हो. अरे वो बोलता है हाउस प्रॉपर्टी यार 10 करोड़ का, मैं थोड़ी ना 4 करोड़ में बेचूंगा, तो मैं रहता हूँ उसमें, वो नहीं बेचना है. सो यहाँ पर क्या हुआ सर, देयर वॉज अ द कॉन्ट्रैक्ट वेंट टूवर्ड्स वॉइडनेस. द रीजन वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज दोनों पार्टीज का कंसेंसस एडिट मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ. देयर द कंसेंट हो भी अगर तो उसको फ्री नहीं मानेंगे, बिकॉज देयर वाज अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट इन दिस केस. क्या आपको समझा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कौन से मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ है, बिकॉज एवरी मिस्टेक डज नॉट रिजल्ट इनटू वॉइडनेस. जरा इसका ध्यान रखना. इफ देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दोनों पार्टीज कुछ अपना अपना भलता ही सोच रहे थे, देन देयर कैन बी अ वॉइडनेस. इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? Yeah, so let us ये तो बहुत एक जनरलाइज डिस्कशन चल रहा है. Let us get into the detail in this. Now the mistake can be of two types, mistake as to law, mistake as to fact. Let us go to mistake as to law. So a mistake of law does not render a contract void, as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. Simple, मैंने आपको कई एग्जांपल दिए. अगर मेरे पास बंदूक निकल गई या मैं सिग्नल तोड़ के भाग रहा हूँ, इन ऑल दिस केसेस आई कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ माई लॉ ऑफ माई ओन लैंड. मैं नहीं बोल सकता अरे मुझे नहीं पता इंडिया में क्या रूल है, अरे तू कहाँ का है, मैं बोलता हूँ मैं इंडिया का ही हूँ. तो अगर तुम इंडिया के हो तो तुमको इंडिया के लॉस पता होने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स लॉ तो पता होने चाहिए कि तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, यू कैन कैरी अनलाइसेंस्ड आर्म्स एंड एमिनेशंस. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. Then, but if the mistake of law is caused through the inducement of another, the contract may be avoided. Mistake of foreign law is excusable and is treated like mistake of fact. Contract may be avoided on such mistake. So यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सर usually just because of mistake of law in India, mistake of Indian law, the contract will not be avoided. मतलब contract void या ऐसे खराब नहीं होगा, contract will remain valid. हाँ, लेकिन एक बात नोट करने लायक है, बताओ कौन सी. अगर आपको किसी ने इंड्यूस किया है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है, या आपको फॉरेन लॉ के बारे में आपको पता नहीं था, फॉरेन लॉ का कोई मिस्टेक अगर हुआ है, इन बोथ द केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ law, mistake of fact. And mistake of law will be treated as mistake of fact, and it can go towards voidness. Simple as that. Yeah. Okay. Now let us go to examples. Say for example, A has a possession of rifle without a license. Now you tell me what will happen. Now B, a policeman caught him. He asked for the defense of mistake of law. That is, he said कि he was unaware that unlicensed license आप rifles carry नहीं कर सकते. So क्या B या कोई कोर्ट या कोई जज उसकी बात सुनेगा? No. Here A does not get any defense because it is assumed that every person knows the law of the land he resides in. Then A murdered B. In this case, A cannot apply for the defense of mistake of law.
नहीं बोल सकता कि अरे मुझे नहीं पता था किसी का मर्डर करना अलाउड नहीं है. सो इन दिस केस ऑल्सो ए विल नॉट बी अलाउड टू प्लीड ignorance of law. And then A was not stopping at any of the red lights on the road thinking that traffic laws does not apply after 11 p.m. Police caught him, he can't apply for the defense of the mistake of law. ये कहाँ से बेटा घर पे बैठ के रूल बनाया कि 11 के बाद कोई मतलब लॉ नहीं चलते. ये ऐसे जो घर पे बैठ के रूल बनाते हो तो आप जेल में बैठ के अगले रूल बनाओ. ना ए हायर्ड अ 14-year-old बॉय टू वर्क इन हिज फैक्ट्री. ये चाइल्ड लेबर हो गया. उसको बोलता है कि पुलिस ने पकड़ लिया तो बोलता है मुझे नहीं पता था कि चाइल्ड लेबर नाम की कोई चीज है और भारत में उसका कोई रूल है. सो यू कांट प्लीड ignorance of law. That is very simple concept. Now mistake as to fact. So where the contracting parties misunderstood each other, एक दूसरे को समझने में उनकी गड़बड़ हो गई, and are at cross purposes, यानी कि एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है. So there is a bilateral or mutual mistake. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एड्रेस दिया का. Now where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of the fact essential to the agreement is void. यहाँ पे हाईलाइट अंडरलाइन करो. और प्लीज ऑल्सो जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कुछ चीजें लेकर बैठो. कलर पेन्स, पेंसिल्स, ओके. नोट्स, ऑफकोर्स सबसे पहला नोट्स लेने का अपना नोट्स मॉड्यूल आप किसी से भी पढ़ सकते हो. मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो उसका प्रिंट आप निकाल सकते हो. कलर पेन की मैं बात कर रहा था. कलर पेन्स, पेंसिल्स, हाइलाइटर्स. हाइलाइटर्स पता है, हाइलाइटर्स एंड देन स्टिकी नोट्स, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन. ये सारी चीजें लेकर आप बैठे तो आपको ये अभी चीजें आपको करना है. आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हाईलाइट करना है. देखो मैं आपको करके बताता हूँ एक बार, है ना. आपको ऐसे करना है मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, और आपको करना है इज वॉइड. कब? व्हेन इट इज बायलैटरल. सो अब क्या होता है सर, इससे क्या हो जाएगा, आपने जो येलो येलो कर दिया, येलो येलो डर्टी फेलो, इससे क्या हम क्या अलग हासिल कर लेंगे बेटा? आप अलग ये हासिल करेंगे कि जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे आपको ये पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई रिपीट, हेलो हेलो टैंगो कॉलिंग चार्ली, हेलो. ओ ध्यान दो भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ. आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन इटसेल्फ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा. क्यों सर? वेरी सिंपल, हाईलाइटेड है. आपको सिर्फ इतना देखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल, वॉइड. समझ रहे हो? इस तरह से आप पढ़ सकते हो. ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल. मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज एम्बेसडर कार टू मिस्टर बी who believes that A has only Fiat cars. अब क्या होता है ना, A के पास 2 कार थी. अगर आप लोगों को मेरा एड्रेस्टिया वाला एग्जांपल अच्छा नहीं लगता तो ये वाला एग्जांपल ले लो, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक मिस्टर ए के पास एम्बेसडर और फिएट कार दोनों थी. मिस्टर ए ने एक दिन मिस्टर बी को बोला, सुनो ना भाई, मुझे अपनी कार बेचनी है ना. मिस्टर बी ओनली न्यू अबाउट दिस फिएट कार. मिस्टर बी को लगा कि ए की फिएट कार है, वही बेच रहा होगा. हालांकि मिस्टर ए के पास 2 कार है और मिस्टर ए को बेचना क्या था? अरे दोस्त, क्या हो रहा है? क्या नहीं, ऐसे कहां से करते हो? सर मिस्टर ए को बेचना था एम्बेसडर, तो उनको लग रहा था वो ए बेच रहे हैं, जबकि बी को लग रहा था कि वो फिएट कार खरीद रहा है. सो क्या हुआ? अल्टीमेटली देयर वाज अ वेरी गुड बायलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट. अब व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट? आप ही बताइए. मैं हाइलाइटर से लिखूंगा आज, मैं देखना चाहता हूं कैसा लिखते हैं. वेरी गुड, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. वेरी सिंपल, रीजन इज वेरी सिंपल सर. आपको लग रहा है कि वो फिएट कार बेच रहा है, उसको लग रहा है वो एम्बेसडर बेच रहा है, कॉस्ट भी मैच नहीं होगी चीज. देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड फ्रॉम बोथ द पार्टी. तो दिस इज अ म्यूचुअल मिस्टेक वेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. To give you some further examples, suppose A agrees to sell B his cow. A क्या बेचना चाहता है? अपनी गाय बेचना चाहता है. B at the same time of the agreement, B at the time of the agreement, the cow had already died. सर क्या आपको सर प्रॉब्लम क्या? एक बात का सर, कभी आप ए को मार देते हो, कभी बी को मार देते हो, कभी गाय को मार देते हो, कभी भैंस को मार देते हो. आपको लोग जिंदा पसंद नहीं. देखो बेटा, मेरे को लोग जिंदा पसंद है, बट हमारे लॉ हर चीज कवर करता है, उसमें सारे लोगों की मृत्यु के बाद की चीजें भी कवर करती है. इसलिए अफसोस, मुझे दिल पे पत्थर रख के कुछ लोगों को मारना पड़ता है, जैसे आज मुझे गाय को मारना पड़ा. तो यहाँ पे A agreed to sell to be his cow, but at the time of the agreement itself, the cow had already died. और neither A nor B were aware of this. अब ये बहुत अमेजिंग चीज हो गई ना. A को मालूम है कि गाय मर गई, ना B को मालूम है गाय मर गई. अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. अब आपने ये एक चीज पहले भी देखी है, एक और सेक्शन इसके बाद में वापस भी आएगा, आपको वो भी समझ में आएगा. द कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन बहुत अमेजिंग, बहुत क्यूट सेक्शन है. उसमें लिखा है, अगर
एट द टाइम ऑफ सेल अगर गुड्स है ही नहीं, ये मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बता रहा हूँ, गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट अकेला नहीं कहता है, इसको सपोर्ट करने के लिए मिस्टेक ऑफ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये लॉ भी उसका साथ देता है, सेक्शन 20, 21, 22 उसका साथ देते हैं। वेरी सिंपल है सर, मैं अपने कोई गाय का भैंस का कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो गाय उधर मर चुकी है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो हम दोनों पार्टीज ये इंटेंशन में कि गाय जिंदा है, मैं पैसा लूंगा, गाय ले आकर दे दूंगा, जब मैं घर गया तो पता चला गाय तो है नहीं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इसका कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। सपोज आप एयरपोर्ट बैगेज क्लेम सेक्शन में आपने गलती से किसी और का रेड बैग ले लिया, ओ माय गॉड सर, सपोज आपका भी रेड बैग था, उसका भी रेड बैग था, आपने अपना समझ के किसी और का बैग लेकर गए और आप घर गए, बिकॉज सेम दिख रहा था बैग, एकदम एंटायरली सेम था, और जब आप घर गए तो आपको रियलाइज हो अरे इस पे तो किसी और का नाम लिखा है, और उसको रियलाइज हो अरे इस पे तो किसी और का नाम लिखा है, तो क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप लोगों ने क्या बार्टर कर लिया, क्या ये सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है? नहीं, दिस देयर इज नो ट्रांजैक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वॉइड, एंड हेंस आपको उसकी बैग रिटर्न करना पड़ेगा, उसको आपकी बैग रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। सपोज ए जोकिंगली हिट नॉर्मली, अब देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, एक दिन क्या हुआ, अब हंसना मत, अभी तुम लोग हंसते हो यार मेरे को ना, इसीलिए चलो ठीक है। एक दिन एक मेरा दोस्त ऐसे खड़ा था, ऐसे ही खड़ा था, तो मैं गया, ऐसा उधर देख रहा था किधर, तो भी तो मैं गया, अरे ये तो अपना है, इसको देंगे आज। मैं धीरे धीरे पीछे से गया, ऐसा हाथ लिया, हाँ, और चट से दे दिया उसके सिर के नीचे, यहां पर ऐसे जोर से, वो पलटा और वो कोई और निकला। हंसो मत, वो कोई और निकला, वो पीछे से मेरे दोस्त की तरह दिख रहा था, जब वो पलटा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई और है। अब what legal alternatives he has, what legal alternatives I have। अब देखो बेटा, दिस इज एन असॉल्ट, अब आप लोग मजाक अभी कर रहे होंगे चैट में, कुछ भी पांच बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं लॉ का टीचर हूं, मैं लॉ बता रहा हूं, इट इज एन असॉल्ट, मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाया है, अब वो मैं कोई भी रीजन दे दूं, मजाक इससे उससे, ऐसा नहीं होता, रैंडमली कोई रास्ते पे किसी को मार नहीं सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस सर, व्हाट हैपेंस, अब मैं, वो उसने तो मेरे पे केस कर दिया कि सर इसने मेरे ऊपर असॉल्ट किया, ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो अब कोर्ट तो सर बोलेगी, इंडियन पिनल कोड बोलता है अगर आप किसी को मारने की कोशिश करते हो, असॉल्ट करते हो, तो उसका तो बड़ा सजा है, तो मैं कैसे बचूं, लेकिन मैं तो गलती से किया ना सर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का मर्डर करने का, था क्या मेरा इंटेंशन? नहीं। अब गेम पलट जाएगा, देखो, I will be given an option to take a benefit of defense of mistake of fact. Why? Mistake of law नहीं, mistake of fact। law हमको पता है कि किसी को मारने से जेल होती है, लेकिन हमको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम बोलेंगे कि भाई ये रहा मेरा दोस्त, इसको ऐसा खड़ा करो, और ये रहे हमारे आदमी जिसको हमने गलती से मार दिया था, उसको भी ऐसा खड़ा करो। And then the court realized कि they are almost identical and it was a valid and genuine mistake of law, mistake of fact, कि इसको लगा कि ये अपना दोस्त है, इसने मस्ती में मारा, और अच्छा इसका इंटेंशन भी नहीं था, और इसने जोर से भी नहीं मारा, और इसने इंस्टेंटली सॉरी बोल दिया, केस भी आया, वॉट एवर ही इज फाइटिंग। इससे हमको ये चीज समझ में आती है, भले इसने गलत किया बट गलती से किया। देखो दो तरह के गलत होते हैं, गलत करना जानबूझकर, कोर्ट आपको बिना सजा दिए छोड़ेगी नहीं, गलत करना गलती से, कोर्ट हो सकता है नरमी बरते, आपको कुछ फाइनेंशियल उनको देना पड़े कॉम्पेंसेशन, आपको ऑफिशियल रिटर्न अपोलॉजी मांगनी पड़े, सॉरी बोलना पड़े, और वट एवर इट इज, बट इन दैट केस आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि टू टेक अ डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज देखो सर सिंपल है, बिकॉज ये क्या है कि ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ये मेरा दोस्त है, अदरवाइज मैं तो पागल होने की रैंडमली कोई लोगों को खड़े रह के मारू, अगर मैं हूं, अगर मेरा हिस्ट्री है कि मैं लोगों को ऐसे ही बार बार मारता रहता हूं, देन ऑफ कोर्स द कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट। व्हाई? बिकॉज वो बोलेगी कि आपका जो रिकॉर्ड है उससे मुझे ये समझ में आता है दैट यू आर नॉट मिस्टेकन, आपने ये जानबूझ के किया है। बट अगर मैं वन ऑफ इंसिडेंसेस, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कभी कर दिया है, तो ऑफकोर्स कोर्ट आपको माफ भी कर सकती है। तो प्लीज कृपया करके राह चलते किसी इंसान पे मारपीट करे ना, भले आप उसके दोस्त भी हो, तो पहले उसका मुंह देखकर कंफर्म कर लो कि आपका दोस्त है, फिर बोलना बेटा पलट, एक तोहफा दे रहा हूं, जैसे वो पलटे फिर चट से मार देना। बट अगर आप किसी को मार रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि वो भी किसी दिन आप ऐसे इधर उधर देखते रहोगे, पीछे से आके टक से मार के भाग जाएगा।
तो बी प्रिपेयर्ड। मैं अहिंसावादी इंसान हूं, मैं हिंसा नहीं सिखाता हूँ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सर आज इतनी जल्दी क्लास होगी, सर क्या आप 2 दिन से ऐसे क्लास ले रहे हैं छोटी छोटी? अरे बेटा रिकॉर्डिंग है ना, तो मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। आज मैंने आपको पढ़ाया कि मिस्टेक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मिस्टेक एज टू लॉ हो सकता है, मिस्टेक एज टू फैक्ट हो सकता है। मिस्टेक एज टू लॉ में मैंने आपको बताया इट कैन बी अ मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, इट कैन बी मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। मिस्टेक एज टू फैक्ट में मैंने आपको बताया इट कैन बी यूनिलैटरल, इट कैन बी बायलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक में मैंने आपको क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। लेकिन अगर बायलैटरल मिस्टेक नहीं है तो फिर क्या होगा, देन इन दैट केस वॉइड, अगर आप किसी के बहकावे में आकर मिस्टेक कर जाते हैं या आप फॉरेन लॉ का मिस्टेक करते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अवॉइडेड। ओके, जय 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 जय, वेरी गुड। मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने आपको बताया एड्रेस दिया यूनिलैटरल, पहले तो कंसेंसस एरिडम मीटिंग ऑफ माइंड, एड्रेस दिया के केस में बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। ना मिस्टेक एज टू लॉ बोलता है कि आपको लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए, जैसे जैसे कि आपको राइफल नहीं रखना है, जैसे कि आपको किसी का मर्डर करना अलाउड नहीं है, किसी को किडनैप करना अलाउड नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये अलाउड नहीं है, so you will not be allowed to take that defense. Reason is very simple, because you cannot plead ignorance of the law of your own land. Now what happens in case of mistake of fact, sir, if there is a bilateral or mutual mistake of fact, the contract becomes void. यानी मैं आपको यही एड्रेस के वाला एग्जांपल अगर दूं एक और चीज में, एम्बेसडर फिएट कार्ड। इफ ए वांटेड टू सेल हिज कार टू बी, तो बी को लगता था कि ए के पास सिर्फ फिएट कार है, जबकि ए के पास एम्बेसडर भी है और फिएट भी है, ए वांटेड टू सेल द एम्बेसडर नॉट द फिएट। तो बी को लग रहा था कि वो फिएट खरीद रहा है, ए को लग रहा था वो एम्बेसडर बेच रहा है, देयर वाज अ म्यूचुअल मिस्टेक एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम void. देन देयर वर लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट, जैसे काऊ वाला मैंने आपको बताया कि हम मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं आपसे अपनी गाय बेचने का, गाय कब की मर चुकी है तो हम दोनों को नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. से फॉर एग्जांपल बैगेज क्लेम सेक्शन में मैं आपकी बैग उठाकर ले गया, आप मेरे बैग उठाकर ले गए, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव टू एक्सचेंज. देन जोकिंगली मैंने किसी को अपना दोस्त समझ के मार दिया, देन ऑफ कोर्स आई कैन प्लीड दैट सर सॉरी मुझसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, वन साइडेडली सही लेकिन मुझसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, मुझे माफ कर दो. सो ये आप क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो लेट अस सी कि आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं. या 30 seconds स्टार्ट्स नाउ. इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट सेशन दैट वी आर डूइंग लास्ट कपल ऑफ डेज. कोई बात नहीं. क्या यूज करने की कोशिश कर रहे हो? वेरी गुड. ही इज ट्राइंग टू यूज मिस्टेक ऑफ लॉ एज हिज डिफेंस. आप गिटार क्लास में गए, गिटार क्लास में क्या हुआ, सर आपके पास एक सेम गिटार है, आपके दोस्त के पास भी सेम गिटार है. अब आप लोग मस्ती मस्ती करते वक्त जाते वक्त आप गलती से अपने दोस्त का गिटार उठाकर ले आए, आपका दोस्त आपका गिटार उठाकर ले आया, क्या करेंगे आप? व्हाट इज दिस? इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, थेफ्ट या चीटिंग. क्या ये चोरी चीटिंग ये सब माना जाएगा या एक मिस्टेक माना जाएगा? और अगर मिस्टेक है तो लॉ का है या फैक्ट का है? सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज आपको लगा वो आपका गिटार है, उसको लगा वो उसका गिटार है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन जब क्लास में आएंगे तो आप एक्सचेंज कर लेंगे. देन A is growing weed in the backyard. अब for those of you अच्छे बच्चे जिनको ये weed नहीं पता, what do you mean by weed? बेटा ये गांजा होता है. गांजा is a क्या बोलते हैं, सब्सटेंस अब्यूज वाला केस है. मतलब इट्स अ ड्रग विच इज नॉट अलाउड इन इंडिया एंड अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो कंट्री में वीड, ये इसको ग्रो करना, कैनबिस जिसको बोलते हैं, वीड कैनबिस ड्रग बहुत सारी चीज बोलते हैं इसको. सो गांजा, इससे क्या होता है, इसको उगाना भी अलाउड नहीं है आपको, इसका सेवन करना भी अलाउड नहीं है, केवल मेडिसिनल पर्पसेस के लिए उगाया जा सकता है. सो एक अपने बैकयार्ड में वीड उगा रहा था एंड ही सेज दैट ही थॉट इट वाज लीगल. वो बोल रहा था कि मुझे लगा कि उगाना लीगल है, खाना लीगल नहीं है, तो मैं उगा रहा था बेचने के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए, बट विदाउट अ लाइसेंस, विच इज अगेन लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ. एंड हेंस यहाँ पर आंसर विल बी मिस्टेक ऑफ लॉ. कि आप कैसे बोल सकते हो कि आपको नहीं पता, कि बिकॉज नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एक्ट है, वहां पे लिखा है ना. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट कैन बी bilateral, unilateral, A or B, none of the above.
सर यहाँ पर इट कैन बी ए और बी, इट कैन इधर बी बायलैटरल और इट कैन बी अ यूनिलैटरल, बोथ. So with this, I would conclude our session for the today. Please मुझे आपकी support की आज ज़रूरत है. I love you from the bottom of my heart and you know that. And I need your support now more than ever. So if you like this video, don't forget to hit the like button. मेरे likes थोड़े से कम कम होते जा रहे हैं, तो थोड़ा दुख हो रहा है. लाइव क्लास में हम लोग 50 likes को ऑलमोस्ट टच करते थे. अभी likes थोड़े कम हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी थोड़े कम हो रहे हैं. I understand कि आपको लाइव देखने में इंटरेस्ट आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गॉन फॉर एवर. मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत मंथ्स के बाद एक छुट्टी ली है थोड़े दिन की, बट मैं छुट्टी लिया नहीं है. मैं रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट, मैं आप अभी कल परसों मैं मतलब आज, अब आप जब ये देख रहे हो तो थोड़े दिन हो गए, बट मैं लाइव आया था फॉर सम सेशन. मैं ऐसे ही कभी ना कभी मौका देख के चौका मार के लाइव आ ही रहा हूँ, और ये वीडियोस मुझे कंटिन्यूस आपको पढ़ाते रहना है. आपकी पढ़ाई पीछे नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ. तो तहे दिल से मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ दिन और निकालिए. 19 तारीख से मैं लाइव आने वाला हूँ, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है. 19 या मतलब मंडे से हम लोग लाइव हो जाएंगे. सो प्लीज आपको थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्टमेंट करना है. सो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें. और वैसे भी मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके आपसे चैट करने. और कोई बात नहीं ना, थोड़े दिन अगर सीरियसली पढ़ भी लिए, हमारी आग कम नहीं हो रही है. हम आएंगे तो इतना मस्ती करने वाले. हमारा साथ कब तक है? हम May 21 तक साथ में है, तो हम लोग तो लाइव ही लाइव रहने वाले हैं. बट कुछ दिन थोड़े प्रीमियर आप निकाल लीजिए, ठीक है. सो विद दिस आई विल एंड द सेशन फॉर टुडे. थैंक यू. एंड इफ यू वांट यू कैन यूज द रेफरल कोड सी आदर्श, इट विल हेल्प मी अ लॉट. एंड आप लोग अगर किसी और, जैसे आपको किसी और फैकल्टी का भी अकाउंट्स पढ़ना है, जैसे आपको किसी और फैकल्टी का ऑडिट पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है. ऑडिट तो नहीं है आप लोगों फाउंडेशन में, इंटर में हो है, बट यहाँ पर जैसे अगर आपको अकाउंट्स, मैथ्स, इको, लॉ किसी और फैकल्टीज का भी पढ़ना है, बट आप मुझसे भी प्यार करते हैं, आपको मुझसे भी लॉ पढ़ने पसंद आता है, और मैं बीसीआर भी स्टार्ट करने वाला हूँ बाय द वे, आपको वो भी पता होना चाहिए. तो प्लीज मैं तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम जब मैं मंडे को आऊंगा तो मैं बीसीआर भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है. तो हम लोग 2 टाइम मिलेंगे हर दिन, तो दिन में 2 बार लाइव मिलेंगे. अभी थोड़े दिन आप एडजस्ट कर लो, तो हम दिन में 2 बार लाइव मिलेंगे. इट विल बी अ फैबुलस. बीसीआर में इतना मजा आएगा ना, आप लोग का पेट दुखा दूंगा मैं हंसा हंसा के. इतना अमेजिंग मैं उसको, मेरे पास अमेजिंग बीसीआर में तो बहुत अमेजिंग ये है, एग्जाम्पल्स है. तो आप प्लीज मेरा थोड़ा साथ दीजिए, और आप रेफरल कोड सी आदर्श ही यूज करिए. इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा जो मुझे आज जरूरत है. देखो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ. अगर आप लोग वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करेंगे, आप रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे, देन आई कैन नॉट से कि मैं कितने टाइम तक यहाँ पर रह के आपको पढ़ा सकता हूँ. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, एवरी वन वर्क फॉर प्रॉफिट. और अगर कुछ भी, अगर मैं उनको आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, बट अगर बच्चों को, बच्चे नहीं बोलते ही जब तक ये चीज, तब तक मेरा कुछ कोई भी चीज ऑफकोर्स ऐसे ही चलती है ना यार. कि ऑफकोर्स आप अगर बोलेंगे आदर्श सर से पढ़ना मजा आता है, आप बोलेंगे लाइक करके, आप बोलेंगे व्यूज करके, आप बोलते शेयर करके, आप अगर रेफरल कोड यूज करके बताओगे कि हमको आदर्श सर से पढ़ना अच्छा लगता है, तो ही तो कोई आदर्श सर को पढ़ाने का मौका देगा. अदरवाइज वाई विल दे गिव एन ऑप्शन. सो लास्ट बैच में हमारा जितना एक्सपेक्टेड था उतना, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत कम बच्चों ने रेफरल कोड यूज किए, बहुत कम बच्चों ने, बिकॉज हमारा फर्स्ट बैच था लास्ट वाला अन अकेडमी में. हम लोगों का वर्क एक्सपीरियंस बहुत है, बट अन अकेडमी में हमारा फर्स्ट बैच था, और हम लोग थोड़ा लेट चालू किए थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ लेट चालू किए थे. तो हम लोग बाकी लोगों से थोड़ा पीछे भी हो गए इस सब चीजों में. तो हम आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को अगर हम सारे लोगों की मेहनत अच्छी लगती है, आपको कोई पर्टिकुलर फैकल्टी भी इंडिविजुअली अच्छा लगता है, तो प्लीज शो दिस टू द वर्ल्ड. आप उनको बताइए कि आप हमसे प्यार करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. And I hope ki I will be able to teach you for the entire session. Thank you. God bless you all. Love you a lot. Stay safe, stay cool, and keep on shining. God bless you.